Hi everyone, hello. I welcome you all to the session. And today in this session, we will be completing our exercise 13.3, that is from the cone section of your surface area and volume. So let's get started with it. This is your math educator Shivangi Rajput. I hereby teach you biology too. I'm graduated from University of Delhi with a 4+ years of teaching experience, and I'm your plus verified educator. The next thing which we are having is the Telegram channel. So the link is already in the description. And please stay connected with us on the Telegram for the session updates and rest of the staff. And the name of the channel is CBSE Class 9. Alright. And you can ace your preparation with An Academy Plus, जहाँ पे आपको daily live sessions मिलते हैं. You have unlimited access to the platform. Top educators are always there to guide you up. आपके पास यहाँ पे regular doubt solving session होता है with full coverage of your syllabus. Then you have your batch courses, your live test series, practice test series, and mentorship and guidance. Everything is available for you. 48 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक का प्लान है. 12 मंथ्स के अगर आप कंसीडर करते हैं यहाँ पे तो इट्स जस्ट 1125 रुपीज पर मंथ एंड आप कोड यूज कर सकते हो SR100. ऑल राइट, द नेक्स्ट थिंग विच वी आर हैविंग इज द अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है. यू हैव योर लाइव डाउट सॉल्विंग, यू हैव योर वीकली रिपोर्ट दैट इज मेंटेन. आपके पास पेरेंट कनेक्ट होता है, स्टडी प्लानर होता है एंड आपके पास प्लस के सारे बेनिफिट्स होते हैं. 48 मंथ से लेके 3 मंथ्स तक का अगेन आपके पास प्लान रहता है. 12 मंथ्स के लिए अगर आप यहाँ पे कंसीडर करते हो तो it's again 2100 rupees per month. SR100 is the code for the same. The next thing which we have is the upcoming batches for class 9th and 10th. So make sure that you guys enroll yourself in it and take the full advantage out of it. एंड अन अकेडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको रियल टाइम लाइव इंटरेक्शन मिलता है. यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन का क्वेश्चन टैब, यू हैव लाइव पोल्स एंड ऑप्शंस एंड लीडर बोर्ड्स व्हिच आर रियली बेनिफिशियल फॉर यू पीपल. एंड कॉम्बैट होता है आपका सुबह 11 बजे हर संडे, आपको पता है. 30 minutes में आपको 45 क्वेश्चंस करने होते हैं फिर मैथ्स एंड साइंस कंपैरेटिवली. ऑल राइट, सो इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल टू सॉल्व इट अप. हर संडे को होता है आपका ये सुबह 11 बजे एंड यहाँ पे आपको 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है. फ्री स्कॉलरशिप, बेसिकली फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 100% पे. एंड अब तो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल भी है आपके लिए. सो मेक श्योर दैट यू गाइस पार्टिसिपेट. CBSE क्लास 9 सुबह 11 बजे आप एनरोल कर सकते हो मेरे कोड के साथ एंड द कोड इज SR100. The next thing which we have is the Unacademy Combat. तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. एंड अगर आप CBSE के 12 की सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर 1 ईयर या उससे ज्यादा की तो आपको 4 मंथ्स का CBSE सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री मिलता है फॉर बोथ प्लस एंड आइकॉनिक. एंड द बग्स बाउंटी फीचर इज देयर, सो इफ इन एनी वीडियो फाइंड एनी कंटेंट which is inappropriate, you're free to report it. And if you're the first person to report a particular problem, you can actually claim a prize for the same. All right, so let's start with our exercise, students, and this is exercise 13.3. So question number 1, as it says, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter. We are given the diameter of the cone, that is 10.5 centimeter. So from this we can calculate the radius. See, the radius निकालेंगे कितना, 10.5 by 2 centimeter. All right, the second thing which is given to you is L. The slant height, which I have already told you, it's the L, and L is given as 10 centimeter. We just have to find the curved surface area. Easy, direct formula apply करेंगे CSA of your cone, that is equal to your pi r L. All right, so pi is your 22/7. Radius is given to you as 10.5 by 2 and your L is 10. All right, अगर आप cancel करोगे इसको, this will be 1.5 and this will be equal to your 11. So this is equals to 15 into 11 अगर आपको करना है. So the answer will directly come to 165 centimeter square. Is it clear with everyone? Done with it. What we have done, let me just revise. So हमारे पास सबसे पहले diameter of cone given था. Alright, we had a cone और cone का diameter मुझे given था base का, that is equals to 10.5. Alright, 10.5 given है मुझे, तो obviously बात है radius कितना हो जाएगा, diameter का half, and then straight away L is given to me, that is the slant height. तो जिसको मैं निकाल सकती हूँ आराम से, pi r L से CSA and multiply किया, divide किया, answer is on the way. Right? Alright, next thing which we are having is question number 2. The total surface area निकालना है. We have to find the total surface area of cone if the slant height L is 21 and the base diameter, again आपको diameter given है, that is 24. तो यहाँ से radius आप निकाल सकते हो simple 12.
सॉर्टेड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, टीएसए का फॉर्मूला आपको कल ही सिखाया था, आपको याद होना चाहिए। टीएसए का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। दिस इज सिंपली द फॉर्मूला फॉर योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ऑल राइट, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 7 से कुछ भी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, नहीं एल हो जाएगा। ऑल राइट, बट ओके लेट्स टेक इट 22/7, नो बिग डील। All right, radius is your 12. L plus R, that is equals to 21 plus में 12. This is what you will get. So this will be equal to 22/7 into 12 और ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा into 33. कुछ भी आपका यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. Alright, this is whole one big term. तो इसका आंसर जब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो this will come out to be 1244 approximately somewhere centimeter square, meter square, sorry. This will come out to be approximately 1244 point something meter square. Approximate value इसलिए निकलेगी क्योंकि 22/7 यहाँ पे किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, so we have to use 3.14 anyhow. All right, so जब हम multiply करेंगे, so this will be the answer which you will be getting. Is it done? Yes. All right. Next question पे move करते हैं. So the next question is your question number 3. The curved surface area of the cone is 308. The CSA is now given to you. That is equals to 308 centimeter square. The slant height is given to you. That is L, which is equals to 14 centimeter. आपको इधर दो parts given है. सबसे पहले parts में आपको निकालना है radius of the base. You know when CSA is given to you, तो आप simple निकाल सकते हो pi r L. Right? CSA is your 308, pi is your 22/7 and radius आपको निकालना है L is your 14. राइट, इसको आप कैंसिल करोगे 2 से, ये दोनों नीचे जाके इसे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 308 डिवाइडेड बाय 22 into 2 इज इक्वल्स टू आर. सबसे पहले इससे ही आंसर आउट होगा, 2 1s are 2, 2 5s are 10 and then you are having what, 2 4s are 8. अब 22 154 से कैंसिल आउट होगा, तो दिस विल बी 7. राइट, यस. ऑल राइट, तो रेडियस आपका यहाँ पे कितना निकल कर आ गया बच्चों, रेडियस आपका निकल कर आ गया 7 सेंटीमीटर्स. डन टिल हियर, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? राइट. अब आपसे क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. नाउ देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. या तो आपको देखो सीएसए गिवन है, अब बस सीएसए में आप कोन का बेस दैट इज इक्वल्स टू सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो भी आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा. नहीं तो आप पूरा पाई आर एल प्लस आर लगाओ तो भी आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, नो बिग डील. ऑलराइट, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो. फॉर्मूला बेस्ड करना है, फॉर्मूला कर लो. अगर सिर्फ सीएसए जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 308 में आपको पाई आर स्क्वायर ऐड करना है तो आप दोनों सेम ही आंसर आएगा. राइट, तो हम जैसा पाई आर एल प्लस आर से ही कर लेते हैं, नो बिग डील. पाई आर इज इक्वल्स टू 22/7 into radius is your 7, L is your slant height is 14 and plus 7 will give you 21. All right, 7 से 7 कैंसिल होगा आपका, 22 into 21 अगर आप लोग करोगे तो ये आपका 462. right, this will come out to be 462 centimeter square. बोलो, is it clear with everyone? Done? yes, easy question था. अगर आपको दूसरे मेथड से करना है, मैंने क्या बोला था, दोनों मेथड बहुत इजी है. ठीक है, या तो सेकंड मेथड आपके पास क्या है कि 308 आपको सीएसए गिवन है. राइट, अब इसमें आपको बस क्या और ऐड करना है टीएसए के लिए, सीएसए में आपको ऐड करना है पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 22/7 into 7 into 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आपका 154 आ गया. बस आपको 308 में 154 ऐड करना था, यहाँ पे 2 6 462, यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाता. सो दोनों में से जो भी आपको मेथड इजी लगे आप वो चूज कर सकते हो, एंड इजी क्वेश्चन है आपके लिए, नो बिग डील. राइट, okay, let's move forward to the next question. Question number 4. A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24. आपको height given है कोनिकल टेंट की. ऑलराइट, देयर इज अ कोनिकल टेंट एंड आपको पता है इसमें आपको तीन चीजें होती है, एक होती है आपकी हाइट, एक होती है रेडियस और एक होती है स्लांट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, आपको हाइट गिवन है यहाँ पे 10 मीटर्स एंड रेडियस आपको गिवन है कितना, 24 मीटर्स. सबसे पहले तो हम स्लांट हाइट निकाल सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है. इफ आई हाईलाइट इट फॉर यू, सो this and this forms a right angled triangle.
राइट तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास बना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, आई नो एल इज माई हाइपोटेन्यूज, एच इज माई परपेंडिकुलर एंड रेडियस इज द बेस। तो यहाँ पे एल का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। L will be equal to under root of your 10 का square plus 24 का square, यहाँ पे अगर हम करेंगे, getting it everyone, तो यहाँ पे इसके बाद 10 का square is 100, 24 का square is 576, this comes out to be under root of 676. Any problem till here? ऑल राइट तो L आपके पास कितना निकल कर आ गया, 26 मीटर्स। अब L है, R है, H है। अब दूसरी चीज क्या बोली है, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट इज दिस। आपको बेसिकली टेंट जिस कैनवास से बनता है दैट फॉर्म्स द CSA ऑफ द कोन, राइट। तो आप सेकेंड पार्ट CSA ऑफ कोन कैसे निकालोगे, सॉरी, so second part the CSA of the cone will be equal to what, will be equal to your pi RL. All right, that will be equal to 22 by 7 into radius that is equals to your 24 and into L that is equals to your 26. All right, ये आपके पास आ गया area, इतना समझ में आया। So this will form out to be somewhere 13276 I guess. All right, 13728 by 7 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका CSA निकल कर आ गया। अब इस CSA को आप क्या करोगे, 70 से मल्टीप्लाई करोगे फॉर द होल कॉस्टिंग। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट 70 रुपीज है तो 13728 बाय 7 की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, ये आपको निकालना है। सीधा आप क्या करोगे, इनटू 70 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 7 से 7 कैंसिल होगा, 0 बचेगा, सो दिस विल बी 137,280 rupees. All right, this is the final cost for the thing. Got it, everyone? Right? Let's move forward to the next question. Question number 5. What length of tarpaulin? Now, what is this tarpaulin? The cloth material, all right? जिससे आपके टेंट बनते हैं, obviously टेंट normal कपड़े से तो नहीं बनते हैं. That's a latex. That's a very different type of cloth which is used. So, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter? ऑलराइट, हाइट आपको चाहिए कोनिकल टेंट की एज 8 मीटर्स, बेस रेडियस आपको चाहिए 6 मीटर्स। आपसे क्या पूछा है, कितनी लेंथ का टार्पोलिन आपको रिक्वायर होता है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन वेस्टेज इज अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है, नो बिग डील। ठीक है, अभी देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे we have to calculate the L, हमें slant height की जरूरत है, तो हम क्या निकालेंगे, L is equals to under root of your h square plus b square, that is base या radius square जो भी आप लिखना चाहो, which is equals to under root of 8 का square that is 64 plus 6 का square that is 36, which is equals to under root of 100। तो L मेरे पास निकल कर आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। It's all in meters, right? Okay, give me a second. It's all in meters. ऑल राइट, ओके, हाइट है आपके पास, रेडियस है आपके पास, लेंथ है आपके पास, और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, अब आपको टार्पोलिन की जो 3 मीटर वाइड है उसकी लेंथ निकालनी है, बट उसके लिए मुझे पता भी तो होना चाहिए कि एरिया कितना रिक्वायर है मेरे लिए, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, CSA that is equals to pi RL। all right, अब obviously मैं 3.14 ही लूंगी क्योंकि ये मेरा 22 by 7 से कटेगा नहीं, so this will be equals to 3.14 into radius that is your 6 into length that is your 10। alright, ये आपको हो जाएगा 31.4 और आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे this will be approximately 188 point something। alright, आप इसको sorry 188, give me a second, 180 I'm so sorry, okay, if you multiply this this will form out to be 3.14 pi RL CSA निकाला आपने 1884। got it everyone? Any problem till here, please do let me know, right? area आप निकालेंगे 0.4, sorry 0.4 centimeter square। all right, this is the area which you will be getting, 188.4 meter square। done till here anyone? all right, अब ये area just now listen to me, what is tarpaulin? अब obviously when you will go to buy a tarpaulin, all right, तो वो ऐसे एक length में आता है। अब आपको एरिया पता है कि आपको एरिया कितना चाहिए, आपको इस टार्पोलिन की विड्थ पता है कि 3 मीटर्स, अब आपको बताना है कि वो यहाँ पे काटे कितने में। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि जो एरिया है
वो किसके इक्वल है द एरिया ऑफ द टार्पुलिन, जो सी एस एच चाहिए हमें कोन के लिए, दैट विल बी इक्वल टू योर एरिया ऑफ द टार्पुलिन। टार्पुलिन कैसे शेप का होता है, अगर आप कपड़ा, जब हम लोग बड़े बड़े रोल्स में से कपड़ा लेने जाते हैं कटवाने के लिए, तो इट हैज अ फिक्स्ड ब्रेड्थ, जो चेंज होता है वो लेंथ होता है, और वो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग काटा जाता है, राइट। सो यार एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया कितना आया, ये जो पीछे आया आपके पास 188.4, दैट इज द सीएसए ऑफ द 10, इनटू लेंथ जो आपको निकालना है, ब्रेड्थ आपका 3 है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 188.4 by 3 will be equal to length, 3 6 are 18, 3 2 are 6, and ऑलराइट अप्रोक्सीमेटली 62.7 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 62.7 62.8 अप्रोक्सीमेट आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो यार लेंथ विल बी इक्वल टू 62.8 मीटर्स, मतलब इस टार्पुलिन का 62.8 मीटर्स आपको कटवाना है। ऑलराइट अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर कटिंग इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 20 सेंटीमीटर है ये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए कट करने के लिए। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स, राइट। तो टोटल लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी, 62.8 जो कि मेरे को चाहिए थी, प्लस 0.2 जो कि एक्स्ट्रा कटिंग स्टिचिंग का है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 63 meters. Now tell me, is it clear with everyone? Yep, सबको समझ में आया क्वेश्चन, डन विद एवरीथिंग। चलो next question. The slant height and the base diameter of a conical dome is 25 meters and 14 meters respectively. Slant height आपको given है 25 meters, radius आपको given है 14 meters, ठीक है, sorry diameter, so radius will be equal to your 14 by 2, that is equals to your 7 meters, right? So this is equals to 7 meter. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of this. Simple है, आपको सबसे पहले CS से निकालना है, which is equals to pi RL, which is equal to 22 by 7 into 7 into 25. So 7 and 7 got cancelled up. All right. So this will be equals to 25 into 20, 500, 550. ठीक है, 550 will be the area मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 210 है। यूनिटरी मेथड से सबसे पहले हमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल लेनी चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या गिवन है कि 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 210 रुपीज। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 210 बाय 100, सॉर्टेड है। तो 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 210 बाय 550 into 100. This will be the cost. इसको आप simplify करोगे, so rupees 1155 will be the correct answer for the final thing. Got it everyone? Yep, easy question, nothing to do. All right. Next question पे चलते, question number 7. A joker's cap is in the form of a right circular cone. एक जोकर की कैप है, जो बर्थडे कैप्स होती हैं या जो जोकर कैप होती है, आप जो भी बुलाना चाहो, that is in the shape of a right circular cone of base radius आपको given है 7 centimeter, height आपको given है 24. All right, find the area of the sheet used to make 10 such caps. अब आपको पता है कि कैप है तो यहाँ से तो ये खाली होगा, तो TS निकालने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. So we have to calculate the CSA, for which we need L. Again under root of your 24 का square plus 49, that is 7 का square. All right, ये आपके पास आ जाएगा simple. Getting it everyone? ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, under root of 625, that is equals to 25 centimeter. इजी। अब एल आ गया, अब आपको वन कैप का एरिया तो मिले, वन कैप का क्या एरिया, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर एल, दैट इज इक्वल्स टू 22 by 7 into radius, that is 7 into L, that is 25. 7 से 7 कैंसिल, अगेन 25 into 22, आपके पास कितना आ गया, आपके पास ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कैप बनाने में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉर 10 सच कैप्स, 10 सच कैप्स के लिए आपके पास कितना एरिया आ जाएगा, 550 into 100, oh sorry into 10, 500. All right,
into 10, which is equals to 5500 centimeters square. That's it, nothing else. All right. So this was all for your exercise 13.3, and I hope that all the questions are clear with you. And thank you so much, people, for attending the session. See you guys in the next session. Till then, take care, have a great time ahead, and a very happy new year in advance. Thank you so much. Bye bye.